It is also to be testable, which means you can support or refute it through scientific research method, such as experiments, observations, and statistical analysis of data. There is a concept of variable whenever a research is conducted. So what is variable in relation to the hypothesis? Hypothesis propose a relationship between two or more variables. An independent variable is something the researcher changes or controls, whereas the dependent variable is something that a researcher observes and measures. Daily practice of yoga enhance health. If we put a simple thing कि योगा की प्रैक्टिस हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, तो योगा की प्रैक्टिस और हेल्थ बहुत बड़ी सी चीज होगी. हेल्थ itself is not the weight of the individual or the height of the individual or the blood analysis of the individual or physical strength or stamina. What can be? Or health is health. It can be the mental health. It can be the physical health. And the same perspectives as an independent measures so far as the daily practices are concerned. The practice of yoga itself is not a one aspect of physical behavior or one aspect of acting in a specific fashion just to twist our body, just to have the breathing. So many aspects is there of yoga. Then, if this problem is there, then there must be accordingly an hypothesis. जो हाइपोथेसिस हम कह रहे डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड हेल्थ ये बढ़ाती है, हमने ये हाइपोथेसाइज कर लिया, मगर ये टेस्टेबल है ही नहीं. हम उस प्रैक्टिस को कैसे हेल्थ के रूप में देखें? हेल्थ के तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं. हेल्थ तो बहुत सारी चीजों को लेके साथ साथ आती है. और हेल्थ एज के साथ में, ग्रुप्स के साथ में, इंडिविजुअल के साथ में सभी जगह अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है. तो इन सभी चीजों को किस तरीके से हम एक साथ रख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है. In this example, the independent variable is practice of yoga, the assumed cause. The dependent variable is health, and fitness is an assumed effect. Now the things happens developing a hypothesis. Writing a hypothesis begins with a research questions that demand an answer. कुछ उत्तर की तलाश में एक क्वेश्चन होता है और वो उत्तर हमारा जो है उस हाइपोथेसिस के रूप में होगा. यदि हमने कोई टेस्ट नहीं लगाया, यदि हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मगर वो उत्तर हमारा जो है प्रीवियस लिटरेचर के रिव्यू के आधार पर, हमारे अनुभव के आधार पर, या और दूसरी रिसर्चेस जो इस कंसर्न हुई है उनके आधार पर हम दे रहे हैं. द क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड. उस क्वेश्चन को वहां पर पर्टिकुलरली फोकस्ड होना आवश्यक है, स्पेसिफिक होना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ इट मस्ट बी रिसर्चेबल. ऐसा नहीं है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ये एक हाइपोथेसिस हमारी है, कैसे हम ढूंढने से वो सब जगह है. हाइपोथेटिकली तो हम करेंगे, एक विश्वास के साथ में करेंगे, एक रिलीजुअल और रिचुअल्स के साथ में हम बात करेंगे. बट ए साइंटिफिक एंडेवर्स नेवर अलाउस अस टाइप ऑफ problems just to be investigated or the hypothesis is to be framed. So this must be in a form of
researchable within the constraints of the project. तो ये स्पेसिफिक चीज है, within the constraints of your project, that it is to be researchable, it is to be specified, and it is absolutely to be focused to your problem. Is audio-visual mode of lecturing is much effective than only audio mode? Here, another hypothesis we are developing, a way just to present the views or lectures through the mode of audio-visual aid. As we are presenting here, audio and visual aid. But if audio is there only, then is it better, or it is more effective, or is it less effective? Here we have dissected these two things. एक aspect हमने रखा, तो इस hypothesis में हमें testing के हमारे पास में रास्ते निकल आए. जैसे योगा वाले में रास्ता नहीं निकल रहा, वहां तो ढूंढना पड़ेगा हमें. यहाँ हमने रास्ता निकाल लिया कि एक ऑडियो और विजुअल दो ग्रुप्स की कंडीशन हम बनाए. एक ऑडियो ऑडियो का बनाए, एक ऑडियो विजुअल, दोनों का बनाए. एंड देयर मस्ट बी ए कंपैरिजन, देयर विल बी ए कंपैरिजन. और डिपेंडेंट मेजर्स को हम जो है, सो फार एज द इफेक्टिव लर्निंग इज कंसर्न, उसे हम यहाँ टेक आउट कर ले. तो वो एक तरीके से डिसेक्टेड हाइपोथेसिस के रूप में हम रख रहे हैं, और वो टेस्टेबल हो सकती है. योर इनिशियल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक. टॉपिक के संदर्भ में आपको पहले से जानकारी, तो आप उसी को उसी में इंक्लूड करते हुए आप हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे. यदि नॉलेज नहीं है, तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर करेंगे, या जो आपकी एक तरीके से इंट्यूशंस या दूसरी बातें कह रही हैं, तब उसको उस रूप में आप लिख के चलेंगे. मगर कोई न कोई आधार आपको जो है उसमें ढूंढना पड़ेगा. लुक फॉर थ्योरीज एंड प्रीवियस स्टडीज टू हेल्प यू from educated assumptions about what your research will find. कि थ्योरीज एंड प्रीवियस स्टडीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर उन थ्योरीज के टेस्टिंग के रूप में, उन प्रीवियस स्टडीज की टेस्टिंग के रूप में कुछ ऐसे संदर्भ वहां लेके चलें. इसको भी आप वहां रखें तो ज्यादा बेटर होगा. एट दिस स्टेज you might construct a conceptual framework to identify which variable you will study and what you will think the relationship are between them. तो वो conceptual framework आप जो है बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्ट आप डेवलप करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल यहाँ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से वेरिएबल इसके साथ कोहेरेंस में हैं, और तब आप अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे. उनको दूर कैसे रखेंगे, एक ही हाइपोथेसिस में टेस्टिंग होगा या बहुत सारी बनानी पड़ेगी, उन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स की भी बात आप वहां करेंगे. नाउ यू शुड हैव सम आइडिया व्हाट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड. एक आइडिया आपके पास में है कि मुझे मिलेगा क्या, कि किस रूप में मिल सकता है. एक नेगेटिव कोरिलेशन में मिल सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन में मिल सकता है, या कुछ इसमें प्राप्त करने की स्थिति नहीं है, या एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कुछ मिलेगा. ये चीजें हाइपोथेसिस में भी कहीं ना कहीं आती है, तभी हम डिजाइन करते हैं. राइट योर इनिशियल आंसर टू द क्वेश्चंस इन क्लियर एंड कंसाइज सेंटेंस. तो वो सेंटेंस जिसमें वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं हाइपोथेसिस में, उसी के अकॉर्डिंग आप जाए. वो कंसाइज भी हो, छोटा भी हो, क्लियर भी हो, और वो एक प्रश्न के उत्तर के रूप में आप जो है उसे लेके चलें. ये रूप भी आप अडॉप्ट करें. जैसे मोर योगा प्रैक्टिस लीड्स टू बेटर फिजिकल हेल्थ रिजल्ट्स, यहाँ भी मोर योगा प्रैक्टिस आपने जोड़ लिया इंडिपेंडेंट में. तो योगा प्रैक्टिस को ही आपको बार बार फिर तोड़ना है. यहाँ कैसा योगा, कौन सा योगा, इतनी सारी विधाएं हैं योगा की, या प्राणायाम की, या साइकोलॉजी में लर्निंग की, मोटिवेशन की.
उसी तरीके से फिजिकल हेल्थ जो हमारा डिपेंडेंट मेजर्स है, कि फिजिकल हेल्थ के कौन से मेजर्स हमने लिए, हमारे ऐसे जो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड फंक्शनिंग है, या हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात है, या फिजिकल फंक्शनिंग की बात है, तो उसको जब हम छोटे से छोटे रूप में लेके आएंगे तो तब वहां पर हम इसको, ये हाइपोथेसिस अपने में कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और ना ये टेस्टेबल है। तो इस तरीके से ऐसी हाइपोथेसिस ना फ्रेम करें। टाइप्स ऑफ योगा एंड फिजिकल हेल्थ शुड बी स्पेसिफाइड, इसको कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिक फॉर्म में लेने की कोशिश करें। रिफाइन योर हाइपोथेसिस, अब आता है उनको रिफाइन कैसे करें। बातें तो हमारी रिफाइन की मैंने की है, बट नाउ यू सी, यू नीड टू मेक श्योर योर हाइपोथेसिस इज स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल, बिल्कुल स्पेसिफिक और टेस्टेबल हो। You are various ways of phrasing a hypothesis, but all the terms you use should have clear definition, and the hypothesis should contain the relevant variables. जो वेरिएबल आपके स्टडी के हैं, उन रेलेवेंट वेरिएबल्स को वहां पर मेंशन किया जाए। द स्पेसिफिक ग्रुप बीइंग स्टडीड, उस हाइपोथेसिस में कई बार कहते हैं कि उसमें ग्रुप का भी जिक्र किया जाए। हालांकि मोस्टली लोग ये करते हैं कि ये स्टडी तो यूथ पर है, स्टडी तो ओल्ड एज पर है, स्टडी तो हाइपोथेसिस में हमें ये मेंशन करने की क्या आवश्यकता है, ऑटोमेटिकली ये वहां है। हो सकता है, लेकिन बेटर ये है कि आप यूथ की बात कर रहे तो यूथ को उसमें जोड़ें, चिल्ड्रन की बात कर रहे तो चिल्ड्रन को जोड़ें, और यदि आप चाहे स्कूल टीचर्स जोड़ रहे तो स्कूल टीचर्स को जोड़ें, एकेडमिक्स को वहां जोड़ना चाह रहे हैं कि एकेडमिक स्टूडेंट्स को दें, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ें। जो भी आपकी डिमांड है वहाँ, उसको आप वहां पर जो है स्पेसिफिक, जो ग्रुप आपका स्टडी किया जाए उसका नाम वहाँ अवश्य लें। द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस, तो वहां पर उस प्रेडिक्शन को जोड़ना आवश्यक नहीं है कि उत्तर तो उसी रूप में आ रहा है। द रिप्लाई इज इन द सेम फॉर्म, जो क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आपको उसका उत्तर देना है। तो वो प्रेडिक्शन तो आपको देना है कि उनमें संबंध है, वो प्रभावित हैं, देर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज टू बी एडेड, देर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द ए विल इन्फ्लुएंस द बी, द इंडिपेंडेंट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बी, या ए इज डिटरमाइनिंग द आउटकम्स ऑफ द बी, लर्निंग डिटरमाइंस द मेमोरी, वो चीजें उसमें वहां आप जोड़ें। इस तरीके से कॉरिलेशनल रिसर्च है, या वो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। Above all these, be specified and detailed. तो हाइपोथेसिस को इस रूप में रखते हुए देखते हुए जैसे चलने की बात आती है, तो उसे आप वहां स्पेसिफिकली देख के चलें कि ये है, सारी चीजें आ गई हैं या नहीं आई हैं। यदि नहीं आई हैं तो रिस्ट्रक्चर कीजिए, और उनका एक सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न की राइटिंग के लिए कैसे हम उसको लेके चलें। टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, you can write a simple prediction in if then form. The first part of the sentence states the independent variable, and the second part states the dependent variable. यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, इस then शब्द के साथ में हम उसको जोड़ सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हैं, उन्हें वहां जोड़ सकते हैं। उनके रिटर्न्स में जो दूसरी चीजें आती हैं, वो अब हम एक तरीके से डिपेंडेंट मेजर्स के रूप में जोड़ सकते हैं। इफ योगा प्रैक्टिस स्टार्ट्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, या प्रैक्टिस कोई भी हो योगा की, हमने ब्रॉड फॉर्म में ले लिया मगर नेचुरल एनवायरनमेंट को जोड़ने की कोशिश की, देन देयर हेल्थ विल अटेन ए बेटर स्कोर। हेल्थ को इसलिए नहीं तोड़ रहा मैं, यहाँ जाकर आप तोड़ सकते हैं जो रिसर्च करेगा। प्रैक्टिस ऑफ योगा को भी यूं नहीं तोड़ रहे, लेकिन ऊपर की बात को सिद्ध करने के लिए कि एक एनवायरनमेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ये किया गया, वो बेडरूम में ना किया गया हो, डबल बेड पे बैठ के ना किया गया हो, वो किचन में बैठ के ना किया गया हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट दे,
लेकिन यहाँ ये कहता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में किया गया तो वो डेफिनेटली वहां पर जो है बेटर स्कोर देगा। तो वो चीज भी वहां पर जो है इसमें मेंशन की जानी चाहिए। In academic research hypotheses are more commonly phrased in terms of correlation or effects. कोरिलेशन की बात भी करते हैं वहां पर, इफेक्ट्स की, कॉज एंड इफेक्ट्स की बात भी करते हैं, वेयर यू डायरेक्टली स्टेट द प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। वो प्रेडिक्शन आप जो कर रहे हैं वो दोनों के बीच में वहां पर स्पष्ट रूप से घोषित कर दीजिए, दिखा दीजिए। नाउ अनदर थिंग कम्स, yoga practice and working hours capacity have positive correlation। योगा प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं और वो वर्किंग आवर्स कैपेसिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। प्रैक्टिस एक अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन आपकी वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है। ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। जिसने योगा प्रैक्टिस की है यहाँ एक पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो जुड़े हुए नहीं है। Yoga practice and working capacity are not positively correlated or are not related or correlated। और ये भी कह सकते हैं कि योगा प्रैक्टिस हैज नो इफेक्ट ऑन, if yoga practices the working capacity of individual की बात हम कर सकते हैं। तो इफ देन एंड बट या कॉज एंड इफेक्ट्स की बात करते हुए हम वहां उन चीजों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ यू आर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, the hypothesis can state what difference you expect to find between them। वो एक तरीके से उनके अंतराल, उनके अंतर की बात हम करते हैं। दो ग्रुप हम जहां रखते हैं कि उनमें अंतर होगा या अंतर नहीं होगा। ये सिंपल हमारा जो है एक जो मीन मीडियन का जो मेथड है वो अडॉप्ट किया जाए, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब डिजाइन हम एक अलग तरीके से करते हैं। डिजाइन हम मान लीजिए फैक्चुअल है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन है, या कोई दूसरे और डिजाइन अडॉप्ट करते हैं, तो वहां पर हमारा लिखने का अंदाज है वो डिफरेंट हो जाएगा। योगा प्रैक्टिस विल डिफर इन मेमोरी रिट्राइवल देन नो योगा प्रैक्टिस ना। अब मेमोरी रिट्राइवल की हम बात कर रहे हैं, यदि तीसरा वेरिएबल हम यहाँ और जोड़ दें तब ये दूसरे रूप में आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही है, योगा प्रैक्टिस विल डिफर इन मेमोरी रिट्राइवल। तो यहाँ सिर्फ नॉन योगा प्रैक्टिस में यहाँ दो ग्रुप की ही बात की है हमने सिंपल। if you research if your research involves statistical hypothesis testing, you will also have to write a null hypothesis। The null hypothesis is the default position that there is no association between the variables। बात यह है कि null hypothesis हम कब लिखें। The requirement of the null hypothesis is what and where। just to start an experiment, just to start an study, everyone cannot say that there is no relationship, there is no cause and effect relations, yeah, there is no relationship। If we start from this hypothesis, तो वो वर्क या फंक्शन करने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो निर्धारित हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वहां कुछ हमें मिलता था, कुछ अंतर मिलता था, किसी स्टडी में कोई प्रॉब्लम थी, किसी से एग्रीमेंट थे, किसी से डिसएग्रीमेंट थे, तो वहां पर हमारी हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में जाती थी। जब वो हाइपोथेसिस किसी डायरेक्शन में जाती है तो हम उसको जो है एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के रूप में यूज करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहां पर आनी चाहिए। आती हैं तो हमारी स्टडी आगे फंक्शन करती है, चलती है, उसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त हम उसको जो है पहले ही नल हाइपोथेसिस लेके चलेंगे तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत है
नल हाइपोथेसिस हमें तब स्टार्ट करनी है जब हम अनबायस्ड होके कोई एक्सपेरिमेंट, अनबायस्ड होके कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, और या एक तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है वो नल से शुरू होता है। वहां पर वो आगे पीछे के अंतर की बात नहीं करता, जो आएगा वो देखा जाएगा, वो सामने आता है। तो इस तरीके से नल को हम किसी एक्सपेरिमेंट से पहले रखें, और एक्सेप्टेंस हमारी जो है वो नल की रिजेक्ट या एक्सेप्ट होती है, रिफ्यूट होती है या एक्सेप्ट होती है, और कॉरस्पॉन्डिंग लीजिए आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वहां पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट होती है। ये एक साइंटिफिक पैटर्न है, वो साइंस में भी चलता है, वो हमारी जो ह्यूमैनिटीज में भी चलता है, सभी जगह चलता है। तो null hypothesis is written as H0, while the alternative hypothesis is H1 और HA। इस तरीके से इनको हम डिमार्क कर सकते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इनका प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल फॉर्म्स में रखते हैं। H0 is not equal to, या H1 is not equal to H2, या H1 is not equal to, इस तरीके की, या इस तरीके से इनके प्रेजेंटेशन इज ग्रेटर देन, इज लोअर देन, इस तरीके की बात करते हुए चलते हैं। तो H0 की बात करें, द नल हाइपोथेसिस, द नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैज नो इफेक्ट ऑन देयर फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर। दिस इज नल हाइपोथेसिस। नंबर ऑफ द लेक्चर्स अटेंडेड, उसने 2 लेक्चर किए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट एग्जामिनेशन स्कोर्स पे है। अब एग्जामिनेशन स्कोर्स हम क्या लेंगे, वही सब्जेक्ट लेंगे जिस सब्जेक्ट के हमने लेक्चर अटेंड किए, उसे हम यहाँ अटैच भी कर सकते हैं दोनों चीजों को, नहीं भी आगे चल के रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी स्थिति इसकी, यदि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें, द नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमने उनको एक तरीके से डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के साथ में, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ में जोड़ते हुए, हमने अपने स्टडी को प्रोसीड करने का निर्णय लिया है। तो निर्णय लेने के लिए आपकी हाइपोथेसिस भी मस्ट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होनी आवश्यक है। अनदर थिंग, राइट ए नल हाइपोथेसिस if your research involves statistical hypothesis testing, you will also, ये तो फिर वही रिपीट हो रहा है, hypothesis testing. Hypothesis testing is a formal procedure for investigating an idea about the world using statistics. It is most often used by scientists to test a specific prediction called hypothesis that arise from theories. हमारे पास बहुत सारी theories हैं, हमारे पास बहुत सारी researches हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनको हमें टेस्ट करना है, मगर उनकी टेस्टिंग में मोस्टली हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, और उनको हम इधर से इन null hypothesis or alternate hypothesis. So collection of data in this design to test the hypothesis. Perform an appropriate statistical test. Decide whether the null hypothesis is supported or refuted. वो जो मैं पहले कह चुका हूँ वही बात है. Present finding in your result and discussion section. ये आपकी जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, जस्ट टू रिफ्यूट और एक्सेप्ट करना है, ये आपके जो रिजल्ट सेक्शन है वो वहां आएंगी, और क्लब करके डिस्कशन सेक्शन में भी आएंगे कि हमने इतनी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली, ये की, ये हमने छोड़ दी। और डिस्कशन आपका जो शुरू होगा वो रिजल्ट बेस्ड होगा, और रिजल्ट्स आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर बेस्ड है। और जब स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है तो वो किसी न किसी हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव करने की बात करता है। स्टेट योर null and alternative hypothesis. After developing your initial research hypothesis that you want to investigate, it is important to restate it as a null and alternate. The alternate hypothesis is usually your initial hypothesis.
that predict a relationship between variables. The null hypothesis is a prediction of no relation between. कोई बात नहीं. You want to test whether there is a relationship between gender and height based on your knowledge of your physiology. Your, you formulate a hypothesis that men are on average taller. Men are on average taller than women. To test this hypothesis, you restate it as men are on average not taller than women. Men are on average taller than women. दोनों हाइपोथेसिस अलग अलग है. एक नल है, एक अल्टरनेटिव है. H0 से प्रेजेंट है, HA से प्रेजेंट है. दूसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा. For a statistical test to be valid, it is important to perform sampling and collection data in a way that is designed to test your hypothesis. If your data is not representative, then you can't make statistical inferences about the population you are interested in. तो स्टैटिस्टिक्स भी आपके सैम्पलिंग पर बेस्ड है, और सैम्पलिंग पर बेस्ड है तो आपकी हाइपोथेसिस उससे प्रभावित हो रही है. यदि आपने जो डिजाइन की है वो सैम्पलिंग के आधार पर ही आप डिजाइन करेंगे, और उस डिजाइन को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो बेस्ड है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस पर है. वो सही और गलत होने के लिए सैंपल की बड़ी भूमिका है, तो इसको सही रखना आवश्यक है. टू टेस्ट डिफरेंसेस in average height between men and women, your sample should be an equal proportion of men and women and cover a variety of socio-economic classes and any other variable that might influence average height. यदि हाइट की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि रीजन, किस रीजन के लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से इक्वल प्रोपोर्शन आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आदमियों का और औरतों का. उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी उनकी हाइट को, उनके फिजिक को प्रभावित करते हैं. और आपने ये भी देखा होगा कि यदि हम कहीं स्पेन में या दूसरे कंट्रीज में जाएं तो वहां की लड़कियों की हाइट बहुत ज्यादा होती है. तो जेनेटिक कैरेक्टर इज देयर. तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सैंपलिंग है वो चारों तरफ से बाउंड होगी, तो आपकी हाइपोथेसिस एक दिशा देगी. यही नहीं है कि हमने जो है किसी एक क्षेत्र से ले लिया, राजस्थान और पंजाब. In comparison to the West UP, the height of girls is more than a man or a boy. तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रीजन का, आपको उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस का, आपको उनके प्रोफेशन का, इस हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए इस डाटा कलेक्शन और सैंपलिंग का भी वहां पर ध्यान रखना आवश्यक है. यू शुड ऑल्सो कंसिडर योर स्कोप. वर्ल्ड वाइड स्कोप इसका है या नहीं जो आप कह रहे हैं, ये रीजनली एक्सेप्टेबल तो है, वर्ल्ड वाइड नहीं है. फॉर वन कंट्री ये है, या एक गांव के लिए है, या एक हिल एरिया के लिए है, कुमाऊं के लिए, गढ़वाल के लिए नहीं है. कुछ है ऐसी बात है. ए पोटेंशियल डेटा सोर्स इन दिस केस माइट बी सेंसर डाटा, since it includes data from variety of regions and social classes and is available for many countries around the world. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं टेस्टिंग के टाइम पर कभी कभी इंडिपेंडेंटली की बात करें कि हाइपोथेसिस इज क्वाइट इंडिपेंडेंटली हैज बीन फ्रेम्ड, ये संभव नहीं है. और उसकी जो वेरिफिकेशन है वो सही आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट, जो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं उनकी वैलिडिटी पर, जो आप मेजर्स करना चाहते हैं चीजें उनकी वैलिडिटी पर. There are a variety of statistical tests available, but they are all based on comparison of within group variance. How spread out of data is within a category versus between group variance. देखिए कहीं ना कहीं जब हम
करते हैं, चाहे वो टी टेस्ट यूज करें चाहे वो एनोवा यूज करें, वहां पर हम सैंपल तो यूज करते ही हैं। जिस सैंपल को हमने यूज किया है उस सैंपल की होमोजेनिटी और हिट्रोजेनिटी दोनों कहीं ना कहीं उस चीज को प्रभावित करती है। और चाहे मीन निकालिए, चाहे टी टेस्ट लगाइए, चाहे उस पर अनोवा लगाइए, मनोवा लगाइए, फैक्टर एनालिसिस कीजिए, यदि आपके सैंपल की विद इन ग्रुप वेरिएंस बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं जो आपके बिटवीन ग्रुप वेरिएंस पर बेस्ड है वो डिस्टर्ब्ड मिलेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं मिलेंगे। वहां अंतर जो आएगा वो अंतर जो है उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में पॉपुलेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि विद इन ग्रुप वेरिएंस जो स्प्रेड होती है वो किन किन कैटेगरी से किन किन आधार पर स्प्रेड होती है, उनको कंट्रोल किया जाए। If the between group variance is large enough that there is little, no overlap between groups, then your statistical test will reflect that by showing a low P. वो निश्चित रूप से वहां पर डिस्टर्ब करता मिलेगा। Alternatively, if there is high within group variance and low between group variance, then your statistical test will reflect that with a high P. That means it is likely that a difference you measure between group is due to chance. वही जो बात हम कह रहे हैं वो स्थिति है कि चांस एरर, ये चांस की वजह से एरर इज दिया। तो उसमें भी हाइपोथेसिस आपकी गलत दिशा में जाएगी और आप उसे स्वीकार कर लेंगे, मगर वो रिजल्ट नहीं है, नहीं वो एनालिसिस है आपकी, आपकी किसी प्रॉब्लम का या आपकी किसी टॉपिक का। योर चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, योर चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, पैरा एम, नॉन पैरा, will be based on type of data, probability versus non-probability you collect। तो उस पैरामीट्रिक टेस्ट को और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आप जो सेलेक्ट करते हैं ये भी डिपेंड करता है कि डाटा की प्रोबेबिलिटी क्या है। उस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के आधार पर आप इनका चॉइस करेंगे और हाइपोथेसिस भी उन्हीं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के आधार पर ही आपको यहाँ पर बनानी होगी। Based on the type of data you collected, you perform a one tail test to the test। दो तरीके के टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। यानी कि एक जीरो से शुरू होता है और बढ़ता ही जाता है। वो एक तरीके से एक से लेके 100 तक, एक से लेके 10 तक जाएगा, वन टेल टेस्ट की स्थिति है। मगर टू टेल टेस्ट आते ही वो जीरो से एक तरफ तो बढ़ता है मगर वो माइनस डायरेक्शन में बढ़ता है, उसकी दिशा दूसरी तरफ भी आती है। इट बिकम्स द टू टेल दैट टाइम। तो ये भी देखना है कि आप यदि आप हाइपोथेसिस लिख रहे हैं तो किस टेस्ट के लिए लिख रहे हैं। एन एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस इन एवरेज हाइट बिटवीन द टू ग्रुप, ये एस्टिमेट जो हम कर रहे हैं टू ग्रुप्स में, तो ये तो डेफिनेटली हाइट की बात करेंगे, ये माइनस में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन यदि हम इसमें किसी और एस्पेक्ट की बात करें, मान लीजिए सोशियोजेनिक नीड सेटिस्फेक्शन की बात करें या किसी और परफॉर्मेंस की बात करें जो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है, जैसे नेगेटिव टेस्ट होते हैं आजकल, वो नेगेटिव मार्किंग चलता है कि दाएं की तरफ भी जा रहे हैं और कट के बाएं तरफ भी जा रहे हैं, तो उस तरह की कंडीशन है। ए पी वैल्यू शोइंग हाउ लाइकली यू आर टू सी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, दिस डिफरेंस इफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। योर टी टेस्ट शो an average height of इतने centimeter for men and average height of इतने centimeter for women with an estimate of true differences ranging from इतने to इतने। the p values, क्योंकि p वैल्यू इतने पे यदि सिग्निफिकेंट आता है तो कहेंगे हाँ भाई ये तो अंतर है, लेकिन यदि इसके अतिरिक्त कोई दूसरी क्वालिटी है तो टू टेल टेस्ट में आएगी, ये कहने का मतलब। डिसाइड वेदर द नल हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और रिफ्यूटेड,
It is based on the outcome of the statistical test. You will have to decide whether your null hypothesis is supported or refuted. ये statistical test पर based होगा. ये टेस्ट ही बताएगा आपका कि ये अब इसकी स्थिति क्या ये वास्तव में एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट की जा रही है. In most cases, you will use probability value generated by your statistical test to guide your decisions. And in most cases, you cut off for refuting the null hypothesis will be 0.05. That is when there is a less than 5 chances that you would see these results if the null hypothesis were true. वहां एरर के चांसेस 5% हैं if we use a level of 0.05. इसका मतलब क्या हुआ कि एरर के चांसेस तो हैं मगर संभावना ठीक होने की, उनमें अंतर होने की ये एग्जिस्ट कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये ट्रूथफुल रिजल्ट्स हैं. जहां हमने एक प्रोबेबिलिटी रख दी है 0.05 की, तो हमारी हाइपोथेसिस कभी 100% तो प्रूव नहीं हुई. एक एरर का चांस हमने दिया. खैर along the discussion in your analysis of the differences in average height between men and women, you find that इतने वैल्यू पर below इतने कट ऑफ, so you decide to reject your null hypothesis of no difference. ये आपको ही निर्णय करना है कि उसे कितने कम तक ले जाना है, कितने ज्यादा तक ले जाना है. और साइंटिफिकली 0.05 और 0.01 को एक्सेप्ट करते हैं. Present your findings. The results of hypothesis testing will be presented in the result and discussion section of your research paper. In the results section, you should give a brief summary of the data and summary of the results of your statistical test. In the discussion, you can discuss whether your initial hypothesis was supported or refuted. वहां जो आपने बनाई थी इनिशियली वो किस हद तक एक्सेप्टेबल हुई, कितनी एक्सेप्टेबल हुई, पार्शियली एक्सेप्टेबल हुई. क्योंकि कोई भी एक प्रॉब्लम एक हाइपोथेसिस के आधार पर एनालिसिस नहीं की जाती, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं. तो कितने परसेंटेज, कितनी संख्या, किस किस रूप में वो एक्सेप्ट हुई, किस किस रूप में वो एक्सेप्ट नहीं हुई, उसका डिटेल्स भी वहां दिए जाना आवश्यक है. तभी वो एक हाइपोथेसिस एज ए होल और एज ए पार्ट हैज बीन एक्सेप्टेड or refuted. Another thing, in the formal language of hypothesis testing, we talk about refuting or accepting the null hypothesis. You will probably be asked to do. This is your statistical assignment. ये statistical form की assignments हैं और ये किसी भाषा में उसी स्टैटिस्टिक्स के रूप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. भाषा स्टैटिस्टिक्स को पॉइंट्स में लेके आ जाएगी मगर जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल अवश्य होता है, लेकिन शब्दों में फिर भी कहीं की प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप उसकी बात कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो बात मैं कर रहा था, कोई भी हाइपोथेसिस परफेक्टली रिजेक्ट नहीं होती, कोई भी हाइपोथेसिस परफेक्टली एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि स्टैटिस्टिकल फॉर्म में प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करते हैं. यदि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन 100% पर आता है तो जो संभव नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के चांसेस 0.5 और 0.05 और 0.01 रखते हैं, इसको और 0.001 रख सकते हैं, लेकिन इवन देन स्पेस इज देयर. तो इस स्पेस को हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि ये स्वीकार किया गया है, मगर उसको ये भी मान लीजिए कि वो परफेक्टली खत्म नहीं हुआ है, एक स्कोप छोड़ के गया है. वो स्कोप है आपकी
एरर्स का, वो स्कोप है आपकी विद इन एरर का, वो स्कोप है आपकी टेस्टिंग का, वो स्कोप है आपके जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, वो स्कोप है आपके कहीं न कहीं क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस की एरर्स का। तो इस चीज को इस रूप में लेके मैं इसको क्लोज करता हूँ, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चनिंग प्लीज? हाँ जी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सर से पूछ लीजिए। हेलो। यस यस गुड यस आफ्टरनून। नीलम गुड पूछिए। गुड आफ्टरनून। सर हाँ नीलम बोलिए, तुम्हारी हाँ जी सर, आवाज टूट रही है नीलम। आई एम रिसर्च ऑन, हेलो हाँ हेलो। हेलो यस। सर, आई एम आज डूइंग रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ yoga and music therapy on stress, anxiety, depression and तुम्हारी feeling आवाज पूरी तरीके से मुझे सुनाई नहीं दे रही। तुम्हारी आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। सर अब सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं रिसर्च कर रही हूँ इफेक्ट ऑफ योगा एंड म्यूजिक थेरेपी ऑन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ मेरे को मतलब कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी पे योगा और म्यूजिक का थेरेपी का इफेक्ट देखना है सर। ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। ठीक है सर, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे योगा एंड म्यूजिक है, डिपेंडेंट वेरिएबल योगा एंड स्ट्रेस, म्यूजिक हो गया, डिप्रेशन, ठीक है। एंजाइटी हाँ हो गए और मेरे वो चार तुम्हारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। हो गए, ठीक है। हाँ हाँ जी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए सर। इसमें मैं हाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही थी, तो हाँ। इसमें मुझे स्टैटिस्टिकल के लिए इसमें कोरिलेशन लगाना है सर। तो हाउ कैन आई यूज अ कोरिलेशन? तो यू आर जस्ट टॉकिंग हियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो रिग्रेशन इक्वेशन के आधार पे आप देख सकते हैं। और यदि कोरिलेशन हाँ आप जी सर। लगाना चाहते हो तो किसके रूप में आप जो है, जैसे आपके इंडिपेंडेंट मेजर्स दो लिए आपने, एक तो हाँ जी योगा है और एक म्यूजिक है। हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी यस सर। वैसे तो इस रिसर्च को यदि आपको देखना था तो ये फैक्चुअल सेटिंग का आपका एक्सपेरिमेंटेशन है। हाँ जी चूंकि इंडिपेंडेंट मेजर्स आपके दो हैं, डिपेंडेंट आपके बहुत हाँ हैं, जी सर। एक एक करके आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं मुझे कोरिलेशन लगाना है। आपको क्यों कोरिलेशन सर लगाना है? वेरी गुड क्वेश्चन। whenever सर, ये you आरडीसी have की a मीटिंग में cause मुझे and बताया effect गया कि relation। यू हैव टू ऐड रिलेशन इन दैट। मैंने है। पहले नहीं लिखा था। हाँ लेकिन भाई देखो, योगा का इफेक्ट और म्यूजिक इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स उनके होंगे। योगा एंड म्यूजिक के जो है एक तरीके से एसोसिएटेड इफेक्ट और इंटरेक्टिव इफेक्ट्स होंगे, चाहे आपके डिप्रेशन पर हो, चाहे आपके दूसरे डिपेंडेंट मेजर्स पर हो। तो यहाँ पर आपको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ही इस स्टडी को देखना चाहिए। हाँ जी यदि कोरिलेशन के रूप में देखना चाहते हैं तो एक वेरिएबल को आप लेंगे, तब आप देखेंगे कि शायद दूसरे जो डिपेंडेंट मेजर्स हैं उसमें दो ग्रुप्स आपने बनाए हुए, एक योगा वाला एक नॉन योगा वाला। योगा वाले के रिजल्ट डिप्रेशन पे क्या है, नॉन योगा के उसमें क्या है, दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, या हाँ जी फैक्टर एनालिसिस इसमें कहीं उस तरीके से आगे बढ़ के देखें आप। तो इसमें बेटर ये था कि आप इसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखें। और यदि आप इसमें जो है दो चीजों को देख रहे हैं कि मुझे तो कोरिलेशन ही देखना है, दैट इज योर इशू, तो आप एक वेरिएबल के साथ में दूसरे डिपेंडेंट मेजर्स को रखते हुए कि किस पर कितने स्कोर आए उस पर कोई कोरिलेशन आप जो है एज पर द डिमांड ऑफ द डाटा आप रख लीजिए। और बताइए। सर, ये आप ही ने मुझे बताया है, करने के लिए आप ही ने बताया है सर मुझे। आप ही ने मैंने बोला था कि आप इसमें कोरिलेशन देखिए। मैंने आपको बोला था कि आप के कोरिलेशन देखिए, मैंने बताया था आरडीसी की मीटिंग में। कोरिलेशन। हाँ जी हाँ 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 जी सर। हाँ, तो वो टॉपिक क्या है आपका ये बताइए ना।
Sir, effect of yoga and music therapy you have on used stress, effect anxiety, of yoga. depression and You feeling have, of insecurity. हाँ, आपने इफेक्ट ऑफ योगा की बात की है. योगा एंड म्यूजिक थेरेपी हाँ जी सर, हैव ए हाई effect of yoga. कोरिलेशन विद सच एंड सच. यदि इस हाँ जी, टॉपिक को मैंने क्या बताया था मुझे तो याद हाँ नहीं, जी. हो सकता है किसने क्या बताया, लेकिन कॉज एंड सर इफेक्ट आपने, रिलेशन. मैंने कहा था मैं इसमें एक्सपेरिमेंटल. नहीं, एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकती हैं, कोरिलेशन भी आप देख हाँ जी, सकती हैं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट जब कर रही हैं तो एक्सपेरिमेंट तो कॉज एंड इफेक्ट्स में ही आएगा ना. हाँ जी सर. तो इसे आप कॉज एंड इफेक्ट्स हाँ में जी, देखिए, और उसमें कहीं ऐसी बाउंडेशन हो कि कोरिलेशन, कहीं ऐसा आपको रिकमेंडेशन आए लिखित में कि ये आपको कोरिलेशन ही देखना है. हेलो, यस सर. ऐसी कोई आपको हाँ जी, यस सर. रिकमेंडेशन हैं? हाँ हेलो, जी, कैसी रिकमेंडेशन सर? कि आपको इसको हेलो, हाँ जी कोरिलेशन सर. में देखना है, हैं? हाँ जी सर, वो आरडीसी की मीटिंग में लिखा हुआ आ गया ना, हाँ, तो अब मुझे उसमें मुझे नहीं दोबारा पता. मुझे अपनी वो जमा करवानी पड़ी और उसमें लिखा है. हाँ, तो मैं इसमें हाँ कुछ जी नहीं सर. कह पाऊंगा कि किसकी रिकमेंडेशन थी, क्या था. पर यदि कोरिलेशन भी आप देखना चाहें तो इसको रिस्ट्रक्चर कर लीजिए, है ना, हाँ जी सर. और उसके अनुसार आप इसको आगे चलिए. ठीक है, आगे बताइए. ठीक है सर. एक बार आप ठीक है सर. अपना आरडीसी थैंक का यू सर. लेटर देख लीजिए कि उसमें हाँ, क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि वर्बल इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर कई सजेशन सर हैं, तो आप इसमें अपना. नहीं 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 सर, आरडी मैम, सॉरी मैम, यस. आरडीसी की लेटर में ही कोरिलेशन आया, वो यूज कोरिलेशन इन स्टैटिस्टिक्स. ओके. हाँ जी सर मैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ओके. कि मैं क्या करूं. ऑब्जेक्टिव उसके so this और is an objection, you can put it again to the RDC and यस. it will be corrected there. नो It is not an issue. मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं यदि ऐसा है. सर अब तो 2 साल हो गए. 2 साल हो गए, और ठीक है, 2 साल हो गए तो 2 साल में तुम कहाँ रहे थे इसमें, किसके साथ हैं आप? सर डॉक्टर प्रीति टमटा मैम के साथ हूँ. हाँ, तो प्रीति टमटा जी के साथ हैं, तो 2 साल यही में तो कुमार वापस. यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रीति टमटा मैम के साथ. हाँ, वेरी गुड. तो ठीक है, आप कीजिए. तो सॉल्यूशंस आपके जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैं उनके आधार पे आप इस बारे में बात कीजिए. हाँ जी सर. ठीक है, आगे. ठीक है सर. ठीक है सर. और किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. और कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट को तो आप पूछ लीजिए. लगता है प्रोफेसर भट्ट जी बैठे हैं बगल में आपके. जी सर. नमस्कार भट्ट जी, कैसे हैं? आपके दर्शन में बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया. हाँ, मैं दिया क्या, अब आप लोगों के आदेश थे भैया, बैठते हैं. क्या बात है. जी सर. तो और बताइए, किसी की और किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बच्चों. सर का वो नहीं दिख रहा ना मुझे. हाँ भाई, हाइपोथेसिस के बारे में और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में अभी तक जो भी बातें हो रही हैं, उन बातों को आप ये सोच के चलिए कि ये आपके फ्यूचर स्टडी के आधार पर हैं. वो स्टडी इसी फ्यूचर में आपकी जो आगे काम करना है वो यहीं से आधारित होकर चलता है. हाइपोथेसिस भी बनती हैं, डिजाइन्स भी बनते हैं, टेस्टिंग भी शुरू होती है. इन सबको जो है इसी रूप में यहीं से डिसाइड करके चलेंगे तो ठीक है. और रही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, यदि किसी की ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी टेस्टिंग की प्रॉब्लम है, डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है. क्यों लिखा गया, कहाँ से लिखा गया, किसने लिख दिया, और क्या सुझाव दिया गया. अब इट इज टू बी ऑन रिकॉर्ड, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है. कुछ गलत भी हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं. और हो सकता है जब उसको फेशियली देखेंगे तो वो क्या है आपके सामने आ जाएगा कि किस रूप में है. पर मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है जैसे आप कह रहे हैं. आगे बताइए. सर आएंगे मिलने एक बार आपसे अगर वक्त.
हाँ हाँ, मिलने अगर तो आप टाइम दे तो सर मैं मिलने आ सकती हूँ आपसे। नहीं, मुझसे तो मिलने आओ, टाइम ही टाइम है। लेकिन इस मिलने से पहले आवश्यक ये है कि यू नीड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल जस्ट टू हैव ए करेक्शन इफ सर्टेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन कैलकुलेशन सब्जेक्ट और इन डिजाइनिंग और इन हाइपोथेसाइजिंग, है ना? तो दैट इज मस्ट। आगे बताइए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हेड साहब बताइए आगे क्या करना है। जी सर, आपने बहुत बहुत समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे भी आप हमें भविष्य में भी इस तरह मार्गदर्शन देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार जी, सब जी, पार्टिसिपेंट्स को, शुभकामनाएं। जी अच्छे सर, से करो भाई, बढ़िया यूनिवर्सिटी बन गई और आपकी नई यूनिवर्सिटी है। इसके लिए तो आपको सबको मिलके काम करना है। जी जी पहले जी जीना कैंपस था, अब जीना यूनिवर्सिटी होगी। बड़ी, बहुत ही बढ़िया। बधाई जी। हो आप सबको, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।